kinds of sentences. So there are total 5 types of sentences. First is, that is those sentences which make any assertion. So statements or assertion, that is called declarative or assertive sentences. So declarative or assertive, those sentences which make any statement. Any statement or assertion. So until there is nothing which is of any surprise or anything which is order or command, the language and the sentences used by us are assertive sentence. These are declarative sentence. Until we do not have any wish, or we pray to God, or we do any request or question anything, then these are assertion. How these are statement? That I am a teacher. So this is a kind of statement I am announcing. In the similar manner, there may be other statements also. So there are trees on either side of road. There are trees on either side of road. It is again a statement or assertion. Further, assertive sentences are subdivided into 2 types. Sentences are subdivided into affirmative and that is swikaratmak, in which the statement of fact is admitted, and in this the statement is accepted. So something, it is a kind of positive sentence. Like again, I am a teacher. I am not a teacher बोल दूँ तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. So like she learns her lesson. She learns her lesson. वो अपना पाठ याद करती है. Her lesson. However, there is other type, that is negative sentence. Nakaratmak. That means she does not learn her lesson. Okay. In the similar manner, I played, and its negative sentence, I did not play. So this is. So Taj Mahal is in Agra. Taj Mahal is not in Agra. Though maybe that sentence may be having its validity, it may be false. However, if not or sign of negation is used, then it is negative sentence. If somebody is stating that Taj Mahal is not in Agra, is not in Agra. So if you go to check its validity,
then its validity is not holding, क्योंकि ये बात तो गलत है, फिर भी चूंकि साइन ऑफ निगेशन आ गया है, दैट्स वाई इट इज निगेटिव सेंटेंस। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो साइन ऑफ निगेशन इसमें आ गया, साइन ऑफ निगेशन, सो इट इज अ निगेटिव सेंटेंस, दो नॉट वैलिड। अब देखो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहला है इफ समथिंग यू आर अनाउंसिंग, देन इसको कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ लेजिस्लेचर। ये विधि सूचक वाक्य है। कुछ आप बता रहे हो ऑन योर अकाउंट कि ताजमहल यहाँ है, ताजमहल यहाँ नहीं है, सो यू आर अनाउंसिंग एनीथिंग, सो इसको कहते हैं विधि सूचक। दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय यू, इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव, बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, दैट्स वाई ये विधि सूचक है। विधि, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी ज्वाइन हुए हैं तो ये आपके पास वीडियो आ जाएगा, तो इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड, दैट्स वाई यू नीड नॉट टू बॉदर। सो दिस इज प्रश्नवाचक। okay, only whatever I ask in between you have to answer it. Interrogative sentences, that is if something is questioned, then so those kind of sentences in which some question is asked, those kind of sentences in which some question is asked or some query is projected, कोई query की गई हो, so this may involve use of helping verb या use of auxiliary verb or that is interrogative pronoun। तो ये कैसे किसी को क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डू यू लाइक मैंगो, सो आंसर हो सकता है यस नो, सो डू दैट इज ए काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब से भी ये शुरू हो सकता है, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब तो होता ही है वर्ब, या इसका दूसरा नाम मॉडल ऑक्सिलरी भी है, मॉडल वर्ब। सो इस तरीके से डू यू लाइक मैंगो, नाउ व्हाट डू यू लाइक, सो व्हाट डू यू लाइक। तो इसने व्हाट ने किसको रिप्लेस किया बताइए क्या व्हाट ने मैंगो को रिप्लेस कर दिया? तो जो चीज किसी नाउन को रिप्लेस करती वो क्या होती है? क्या वो प्रोनाउन होती है? सो समथिंग विच रिप्लेसेस नाउन इज सेड टू बी अ प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया? ये कैसा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और कौन कौन से हो सकते हैं? वेयर, हु, हुज, हाउ, ऐसे कुछ भी जो प्रोनाउन हैं, ठीक है, ठीक है, हाउ, इस तरीके से ये सारे हैं। सो सच काइंड ऑफ प्रोनाउन आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो in interrogative sentences either it may use in starting helping verb or it may start with interrogative pronoun. So such sentences may start with helping verb
और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बट एंड दे यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन ऑल्सो, और इनमें क्या यूज होता है, दे यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। अब देखिए, such kind of sentences, some example of such kind of sentences like will you help me, it is a also kind of asking, so that is will you help me, and have you ever been to Bombay, क्या आप कभी बॉम्बे में रहे हैं, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, सो हु इज मेकिंग अ नॉइस, so in all these sentences if we see that who will replace Ram, Ram is making a noise, now Hari is making a noise, have you ever been, I have been in Bombay in 1993, so it is a kind of period, so it is replacing a period, will you help me, in this only helping verb with which the sentence is starting and some query is put, so in this way such sentences are made. Now ओके, क्लास बेटा 5 बजे शुरू हुई है, आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, द सेंटेंसेस इन विच कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन ऐसी चीजें हों, द सेंटेंसेस इन विच कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज को मना करने का भाव, मना करना, इस तरीके की फीलिंग हो, और एडवाइस is reflected, is such kind of sentence, ऐसे sentences को क्या कहते हैं कि आदेशात्मक वाक्य। वैसे आदेश के अलावा और भी कुछ है, इसमें रिक्वेस्ट भी है, so these are imperative sentences. Let us see it. Show me your homework. So teacher may ask student, and it is show me your homework. So it is order. Now move ahead, आगे बढ़ो, it is a kind of command given by some colonel to his troop, so that is command. Now there may be some prohibition also, that is do not spit on the floor, on the floor. See, here there are different things. Do, it does not involve you, so do you not go to school? अगर ऐसे होता, यहाँ पर कुछ ऐसे बात होती, कोई प्रोनाउन होता, नाउन होता, डज राम नॉट गोइंग, तब तो निगेटिव हो जाता, बट हियर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज यूज, सो इट इज, इसका सिंपली मतलब है फर्श को गंदा मत करो, ओके।
सो डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या चीज नहीं है, सब्जेक्ट इज मिसिंग, सब्जेक्ट नहीं होता है। दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो। सो डू यू नॉट स्पिट, तो क्या तुम स्पिट नहीं करते हो, थूकते नहीं हो ऑन फ्लोर, ऑन द फ्लोर। सो इस इन दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग अंतर है। हियर इट इज सीन दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, हाउएवर यहाँ पर एक तरीके का प्रोहिबिशन है। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, इट इज प्रोहिबिशन। सो प्रोहिबिशन में एक बात कही जाती है, डू नॉट प्लग द फ्लावर। सो गार्डनर में टेल कि फ्लावर को तोड़ना नहीं, नॉट टू प्लग द फ्लावर। सो हियर सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि ये असर्टिव का एक काइंड हो गया। ओके, नाउ अगेन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज, हाँ बोलो, ऑर्डर और कमांड क्या फर्क है? बोलिए बेटा। हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर कमांड में क्या फर्क हो रहा है? ऑर्डर एंड कमांड में ये फर्क हो रहा है कि एक ऑर्डर एक छोटे स्तर पर भी दिया जा सकता है, जैसे टीचर है, तो टीचर अगर देगा या स्कूल में है तो वो ऑर्डर होता है। हाउ एवर इफ इट इज पर्टेनिंग टू सोल्जर्स देन इट इज कमांड। यू मे बी डिस्पेल्ड, यू मे बी गिवन court martialed if you do not obey the command. However, such rigorous actions are not taken in case of orders. If you not obey, if you are not showing your homework, there may be some minor punishment, so mild punishment in case you are rejecting the order. However, in case you are not obeying the command, then you will be court martialed, then you will be court martialed. बात समझ में आ गई बेटा? So it pertains to troops, it pertains to military or forces. However, order is a general kind of, it may be from principle, it may be pertaining from society. order society में होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है, जबकि कमांड दी जाती है सोल्जर्स को, उनके किसी न किसी विंग कमांडर के द्वारा, ग्रुप कैप्टन के द्वारा, कर्नल के द्वारा, या जो भी है जर्नल के द्वारा, या नेवी का पैटी अफसर, चीफ पैटी अफसर, उनके द्वारा कमांड दी जाती है। सो देयर इज ए डिफरेंस, इट इज रिलेटेड टू सोल्जर्स, ट्रूप्स, फोर्सेज, एंड इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ओके, इफ यू आर इन सम डेजिग्नेशन, सो योर सुपीरियर में गिव यू ऑर्डर। आप कहीं पर बैंक में कर्मचारी हैं, देन यू आर ए क्लर्क, देन बैंक मैनेजर कैन गिव यू ए ऑर्डर, सम ऑर्डर, एन ऑर्डर। बोलो, बात समझ में आ गई प्रवीण? Okay, so always speak the truth. So it is also a kind of advice. Please bring me a glass of water. So प्रवीण, ये किस तरीके का भाव है? प्लीज ब्रिंग, हाँ, a glass of water. So request. So in this way we have seen that imperative sentence covers prohibition, prohibition को भी कर रहा है। So हम कहीं पर जाते हैं और मान लीजिए उसका दरवाज़ा छोटा है, तो हम बोलते हैं माइंड योर हेड। व्हाट डज इट मीन? कि अपने सर का ख्याल रखें, माइंड योर हेड। क्या? हाँ, इट सजेशन हो सकता है या एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। नाउ पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। डू नॉट मेक ए नॉइज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। So in such kind of sentences
which express strong feeling. So the sentences which express strong feeling, इसको कहते हैं विस्मय हो जाए किसी चीज को देख के, विस्मयादि बोधक वाक्य। कभी आप ताजमहल को देखेंगे तो आपको विस्मय हो जाएगा। इफ यू गो टू श्रीनगर देन द ब्यूटी विल गिव यू ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। सो द आश्चर्यचकित, बोलिए, इसका मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, विस्मय में पड़ जाएं। सो इट इज ए काइंड ऑफ एस्टॉनिशमेंट। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट इज एस्टॉनिश। So like alas I am undone, मैं बर्बाद हो गया। alas I am undone, undone का मतलब जो मैंने किया था वो सब मेरा बिगड़ गया, मैं लुट गया। सो दुख है कि मैं लुट गया। सर अलास मतलब, अलास का मतलब हाय, मैं लुट गया। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्रेस करना होगा, हाय मैं लुट गया। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एंड एज प्रवीण हैज़ एक्सप्रेस्ड द फीलिंग, समथिंग विच मे बी हैपेंड टू प्रवीण एंड एट दिस टाइम एट nick of moment he has remembered the same, that's why, and we should all feel sorry for Praveen. Now hurrah, we have won the match, we have won the match. सो हुर्रा का मतलब यहाँ पर होता है कि इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लेजर। तो जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, वाह हम मैच जीत गए, या कुछ भी इस तरीके से कह सकते हैं। सो इट इज़ ए सडन एक्सप्रेशन व्हेन you are unexpected to win and you are winning the match, so such kind of feeling. Wow, what a beautiful Taj. Full nasty fall. ये कित वहाँ तो वाव का होगा ना, बोलो, सर वहाँ तो वाव का होगा ना, wow is an exclamatory, it is a sign of exclamation, sign of, क्या बोल रहे हैं आप बताइए तो फिर। सर आपने बोला था हुर्रा का मतलब वाव होता है, तो वो तो वाह, तो हुर्रा की अब हिंदी आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आप डालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जैसे आप कोई खुशी में बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं वो बताइए, तो वही लिख दिया जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऐसा कुछ भी आप निकालें तो जिसकी वजह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं ओए हम मैच जीत गए, एनीथिंग वाट एवर, तो कभी भी जब आप एक्सप्रेस करते हैं सो यू डू नॉट डिक्लेयर डायरेक्टली, सम वर्ड यू are using, we are using during the time we are getting surprised, a sudden and strong expression is there, then we do not directly start the sentence, something we are saying hi हम तो बर्बाद हो गए। so ऐसे in case of sad demise of anything, किसी के मर जाने पर we are not simply saying कि वह मर गया, ऐसा हो गया, so that means some sign of exclamation is always there, okay. Now sometimes it may be also starting with what, what a beautiful place it is, full place it is, क्या सुंदर जगह है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। सो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है, एंड दिस इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये जो भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये वाव या ये सब क्या है, दिस इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। सो इन दिस वे, और सभी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आप देख रहे हैं लगा है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
So optative sentences, those sentences in which some wish or pray is done, those sentences in which some pray or wish is there, then it is called प्रार्थना सूचक वाक्य. नाउ व्हाट, ऐसे कैसे वाक्य हो, सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें प्रार्थना हो? दैट इज मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा हो सकता है. मे गॉड ब्लेस यू. हिमांशु कोई और वाक्य बताओ. May his soul rest in peace. मे, हाँ ये ठीक है. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. दैट इज वुड दैट आई वर ए किंग. वैसे आई के साथ वाज लगता है, लेकिन ऐसी चीज जो असंभव सी हो और आपकी कोई विश हो, वुड दैट तो वर लग जाएगा, आई वर ए किंग. और यू के साथ वाज लग जाएगा, ही के साथ वर लग जाएगा, कंट्रेरी कंट्रास्ट में लगता है. काश मैं एक राजा होता, इस तरीके से. यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, सतरंगी तितलियां तैरती दरवाजे पर मेरे, और मोर नाचते आंगन. तो इस तरीके से कई कई तरीके की कल्पना कवि कर रहा है कि ऐसा ऐसा होता, तो अगर मैं परियों का राजा होता तो क्या क्या होता. सो सच काइंड ऑफ फीलिंग somebody is expressing. Now, so would long live the president. So these are the various types of sentences. Now, अब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको बताना है कि वो सेंटेंसेस किस किस तरीके के हैं. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, सृजन. Yes, sir. The first sentence are explanatory है. फर्स्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है. ओके, नाउ बस सेकंड भी बताना है. नेक्स्ट, ये नेक्स्ट श्रेयान. स्क्रीन थोड़ी ब्लर है. स्क्रीन हाँ, सर अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई है. ठीक है, वो अभी पेन रख देंगे तो ठीक हो जाएगी. बताइए. नाइदर अ बोरोवर नॉट ए लेंडर बी. श्रेया, नाइदर ए बोरोवर, ना तो पैसा दो ना पैसा लो. ये किस तरीके का सेंटेंस है? सजेशन. यस, इट इज ए काइंड ऑफ सजेशन. तो फिर क्या होगा? सेंटेंस का नाम बताइए ना. हाँ, इम्परेटिव. इम्परेटिव ठीक है. नाउ अनीशा, ब्लड इज थिकर देन वाटर. अनीशा, आर यू देयर? आई ओके, टेल अनीशा, ब्लड इज थिकर देन वाटर. ईशान, ब्लड इज थिकर देन वाटर. सर डिक्लेरेटिव. Declarative. Okay, Ayush, how did he treat you there? सर मैं बताऊं? ईशान, कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं? हाँ, कार्तिक बताओ. How did you he treat you there? इंटररोगेटिव सेंटेंस. Mahi, pay my best compliments to your parents.
माही क्या है? इंट्रोगेटिव कहाँ है इसमें? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अनुराग, अनुराग, दैट इज, इट इज इम्पेरेटिव। सो पे माई बेस्ट जिससे पूछा जाए वही बताइए। नाउ अनुराग, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता से ज़्यादा सफल कुछ नहीं है, आगे नहीं बढ़ता। इट इज नथिंग सक्सीड्स, इट इज़ ए काइंड ऑफ, आई थिंक एडवाइस हो सकती है किसी को, तो इम्परेटिव होना चाहिए। ओके, नाउ हाउ डेयर यू एंटर द हाउस। अनीशा, इसमें पूछा नहीं जा रहा है कि कुछ, क्या बोला आपने? हाँ, इम्परेटिव ठीक है। तुमने यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे की? तो ये पूछ नहीं रहा है कुछ। हाँ, दो इट में भी क्वेश्चन, तो क्या आप इसका आंसर दोगे? हाउ डेयर, हाउ जस्ट, हाँ होगा लेकिन शायद वरना क्वेश्चन मार्क नहीं आता। देखिए इसको हम देख लेते हैं। हाउ डेयर यू एंटर द हाउस, क्योंकि मुझको लग रहा है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ, किसी को आप क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सो इन केस what kind of sentence it should be? How dare you enter the house is which kind of sentence? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। किसने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव है बेटा ये, बिकॉज इसमें साइन आया हुआ है, देयर इज ए साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्लीज लिसन टू मी। इट इज इम्परेटिव। मे गॉड ब्लेस यू। स्क्रीन सही कर देते हैं। नाउ अभी कुछ ठीक हुई? मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज ऑप्टेटिव। हैव यू एवर ट्राइड योर लक? ही हैज ए गुड मेमोरी। डिक्लेरेटिव। तो इस तरीके से गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। फिर से देखिए ये कैसा होगा? ऑप्टेटिव। गॉड सेव द क्वीन, कोई बात नहीं, ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लेमेटरी होता है, ये देखो। तो ऐसा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में क्या होता है, इसमें साइन आता है। मे यू ऑल पास, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली। It is imperative. Okay, now as you are all are aware with the types of sentences, so we switch over to parts of speech now. पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ लोग नए आए हैं, एंड थोड़ा सा नाउन का बता देंगे, फिर आगे हम चलेंगे। ओके, सो
parts of speech. Now there are two different things, a parts of speech and figure of speech. जैसे आप लोग कभी अनुप्रास अलंकार जानते हो, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, ऐसे हिंदी में जानते हो? हाँ सर। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी देयर आर सर्टेन फिगरेटिव थिंग्स यूज्ड टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस, देन दोज आर नोन एज फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम ये देखेंगे कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, words are divided into different kinds of classes. Words are divided into different kinds of classes called parts of speech on basis of their role. तो उनका रोल क्या है उसके बेसिस पर उनको किया जाता है. ठीक है. नाउ और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentence, उसको parts of speech कहते हैं. Now there are 8 kinds of parts of speech. These are, its kinds are noun, pronoun, adjective, then verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. डिटरमाइनर भी एक पार्ट है. इट इज डिटरमाइनर को भी माना गया है. नहीं, डिटरमाइनर को माना गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच. बाकी कॉम्प्लीमेंट नाउन होते हैं मोस्टली. जैसे ही इज सैड, तो सैड कॉम्प्लीमेंट है. अब देखो, एक तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के तौर पर हमने किया था कि उसका क्या रोल है, कि अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड वॉट एवर इज सेड, ऑन दैट बेसिस वी हैव मेड द वेरियस फ्लो चार्ट. नाउ अब हम देख रहे हैं कि उनका रोल क्या है, वॉट रोल दे प्ले अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. उसके बेसिस पे पार्ट ऑफ स्पीच होती है. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे देन ग्रामर का 60% पार्ट आपको पता चल जाएगा. बिकॉज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिंटेक्स हैं कि कहाँ कहाँ कमियाँ होती हैं, जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, तो ये भी देखेंगे सेंटेंस और फिर उसका मॉडिफिकेशन. वो गलत सेंटेंस मैं आपको दूंगा, उसे सही करना होगा. तो उसके बेसिस पर आप देखेंगे कि वेयर समथिंग, जहाँ नाउन में गलती है फिर वो आप ठीक करेंगे. सो पहले हम सेंटेंस नाउन पढ़ते हैं, फिर सेंटेंसेस आपको देते हैं. फर्स्ट इज नाउन. So a word used as a name of person, place or thing. A word used as a name of a person, place का नाम हो और thing किसी चीज का नाम हो, तो ये हो सकता है. और पर्सन की जगह लाइफ फॉर्म भी हो सकती है, काऊ भी हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है. नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन ऑल्सो. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ देम. कॉमन नाउन के क्या क्या एग्जांपल हैं? सो कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि दैट इज बर्ड.
विच इज़ यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जैसे बर्ड्स हैं तो एक साथ वो रहती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, जो एक साथ रहें रिप्रोड्यूस करें ऐसे ग्रुप को स्पीसीज कहते हैं। तो बर्ड हो गई। ऐसे क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी, पेन, तो कई तरीके के पेन आते हैं, ट्रीज, ट्री हो गया, मैन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। सो ऐसे पर्सन्स, मैन और वुमेन अलग अलग भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैन आर ऑलवेज मिस्चीवियस, इस तरीके से वुमेन आर ऑलवेज ग्रेशियस, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ग्रुप हो गया, उनके बारे में फिर हम नेचर को बता सकेंगे। तो मैन हो गया, काऊ, रिवर, तो ये किसी का, हाँ बोलिए। सो दीज आर यूज, ये सभी हो सकते हैं क्योंकि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके अपने अपने सेलिएंट फीचर्स होंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सो इट इज पर्सनल, किसी चीज़ का अगर आप नाम बताते हैं, जैसे अशोका, तो वो प्रॉपर है। सो इट इज नेम ऑफ एनी थिंग पर्सनल विच इज pertaining to a single person और single thing। बॉम्बे या मुंबई, गंगा, इंडिया, भगवान के नाम हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं, कृष्णा, सन, बिकॉज सन इज ओनली वन, सो सम स्टार, जैसे उसको सन कह सकते हैं, या फिर अल्फा सेंटोरी जो हमारे पास का सबसे पास का स्टार है, दूसरी गैलेक्सी, जो नियरेस्ट गैलेक्सी का स्टार है वो अल्फा सेंटोरी है। सो इस तरीके से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, केवी नंबर 1। सो दीज आर प्रॉपर नाउन। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। सर हमारे भी नाम हो सकते हैं सर। हम सभी के नाम हो सकते हैं, जब कृष्णा का हो सकता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, इट कम्स इन प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो ग्रुप को नहीं बता रहा है, तो इसमें सीजन का भी नाम आ सकता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो कार्तिक का भी नाम आ सकता है। कलेक्टिव का मतलब क्या है कि इफ इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप, जैसे बर्ड एक ग्रुप को नहीं रिप्रेजेंट करता है, बट तो यहाँ कॉमन नाउन क्या है? सो इट, कॉमन नाउन का मतलब है दैट मीन एनी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। सो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, पेन तो कई तरीके के भी होते हैं, सेलो, इन सब के, ट्री, पीपल ट्री, ऐसे कई कई भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, देन इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप, लाइक पार्टी। तो पार्टी एक सिंगल आदमी नहीं बना सकता। अकेले घर में अगर आप दरवाज़ा खोल के बोलो क्या कर रहे हो, बोलो पार्टी कर रहे हैं, तो सिंगल आदमी कैसे कर लेगा? इट शुड बी ए ग्रुप। नाउ इन दिस केस लाइब्रेरी, what does it mean by library? So which kind of group it is? Group, हाँ, army, group of soldiers is something, gang, so gangsters का ग्रुप हो सकता है, और किसी चीज़ का गैंग हो सकता है। हर्ड, मवेशियों का, दैट इज ग्रुप ऑफ शीप, कुछ किसी चीज़ का झुंड है, या कैटल्स, ग्रुप ऑफ किसी चीज़ का झुंड है, बकरियां चल रही हैं, तो हर्ड कहा जा सकता है। क्या बोलिए? वही स्कूल। हाँ, तो इस तरीके से फ्लीट हो सकता है, फ्लीट हो गया, फ्लॉक हो गया, किसी भी चीज़ का, चिड़ियों का झुंड, फ्लॉक। नेक्स्ट क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है। डिकेड क्या होता है? मर्डर भी हो सकता है। डिकेड का मतलब है ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी क्या है? हाँ, तो सेंचुरी भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। नाउ मटेरियल नाउन। नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो उसके मटेरियल का हो, जैसे सिल्वर, सिल्वर तो इसको बिल्कुल साइंटिफिकली नहीं लेंगे मटेरियल, वुड भी हो सकता है,
ठीक है। वुड इफ क्लियर नहीं है, ऐसे मर्डरर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कई लोग मिल के मर्डर नहीं करेंगे, एक आदमी भी मर्डर कर सकता है, तो हत्यारा तो एक भी हो सकता है। मर्डर सर तो आप क्रोध को कहते हैं, किस क्या कलेक्टिव फॉर्म में आएगा वो। मर्डर किसको कहते हैं? सर ग्रुप ऑफ क्रोध। ग्रुप ऑफ क्रो। लेट मी चेक देन आई विल सी, इसको मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिल्वर, आयरन, वाटर, किसी चीज़ का मटेरियल है तो उसका नाम जो भी है कि इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, कॉटन, तो ये मटेरियल नाउन है। जूट, जूट की रस्सी बनती है, बोरे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। ग्रुप ऑफ सर क्रो है, क्रो क्रोस मर्डर एंगल। ग्रुप ऑफ क्रोस यानी कौवों का समूह। यस सर, यस सर। हाँ मैंने किया था पहले। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। सबके टीम। ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड According to PBS, a group Murder, of crows yes, is it is called a murder. There are several different explanations for the origin of this So term, it is mostly based on old murder. folktales and superstitions. सर क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। हाँ टीम भी हो सकती है, कोई टीम हो सकती है। नाउ क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, दिस ऑल में भी मटेरियल नाउन का आपको मतलब समझ में आ गया। नाउ अब देखिए कि अगर आप कुछ केसेस में यहाँ पर फिशेज आर, फिशेज लिव इन वाटर, मान लो ऐसे अगर आप कहते हो कि फिश लिव इन वाटर और आई बॉट फिश फॉर फूड, तो यहाँ जो फिश है वो क्या हो गया? देखो यहाँ की जो फिश है वो क्या है और यहाँ की फिश क्या हो गई? ये अब मटेरियल हो गई, क्योंकि यू हैव बॉट चिकन फॉर फूड, तो चिकन अब क्या हो गया यहाँ पर? सर हाँ बोलिए। सर आपने कहा फिश लिव इन वाटर, सर फिश लिव्स इन वाटर होना चाहिए था ना। हाँ फिश लिव्स इन वाटर, तो अगर मान लीजिए ये बात कही गई है कि फिश, सो फिश के केस में लेट अस चेक दैट सर आपने बताया था सर फिश का प्लूरल नहीं होता है उसका। हाँ तो ये प्लूरल में भी हो सकती है, दैट इज लेट मी चेक इट अगेन। सर आपने जब ऑफलाइन प्लूरल ऑफ फिश, आपने बताया था। According to Grammarly, the plural of fish is usually fish. फिश When होता है तो referring ये to more सेंटेंस than one ठीक है। species of fish, especially ठीक है। in a scientific context, you can use So fishes fish as the plural. इन केस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ओनली यू कैन, जैसे अगर आपको कहना है कि कटला फिश, रोहू फिश, तो उनके नेम ऑफ फैमिली बतानी तब फिशेस करेंगे, सम काइंड ऑफ फिशेस आर, अदरवाइज इन जनरल वी विल से एज ए लेमैन पर्सन, एज ए कॉमन मैन वी विल यूज फिश। फिश इज सिंगल के लिए भी यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए भी फिश, तो प्लूरल है तो फिश लिव इन वाटर, यही चीज़ है सेंटेंस में, इसका प्लूरल नहीं होता। लेकिन साइंटिफिकली नेम करते समय जबकि रोहू, कटला, हिल्सा इन सब के नाम बताओगे तो उस केस में आप फिर कहोगे कि नेम ऑफ सम फिशेज आर, तब फिर बोलोगे। अच्छा अगर जैसे आई ब्रॉट फिश फॉर फूड, तो यहाँ पर अब फिश आपके लिए कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, इट इज़ ऑर्गेनिज्म नहीं, ये आपका मटेरियल हो गया खाने का, तो यहाँ मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाव किसी का छिपा हो। सर फिश तो कोई मटेरियल नहीं होती है। हाँ लेकिन अगर आप फूड के लिए ला रहे हो देन इट इज़ ए मटेरियल। सो इन सर्टेन, वाले में पूछ रहा हूँ। ऊपर वाले केस में जो फिश है वो क्या है? दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, जबकि नीचे वाले केस में क्या है? मटेरियल नाउन। तो कभी कभी क्या होती है कि अगर फिश कई केस में कॉमन नाउन है क्योंकि किसी प्रजाति को बताती है, तो कॉमन नाउन यहाँ पर क्या हो गई कि एक जैसे काऊ है वैसे फिश है, तो ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन यहाँ क्या बन गया बताइए? मटेरियल नाउन। तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पर है।
If you are seeing it as a life form, that various kinds of fish are there, then it is common noun. If you are taking as food, then it is material for you. तो ऐसे केस में आपके लिए खाने का मटेरियल हो जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक ऑनेस्टी. So it is a kind of feeling, kindness. ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज भी होते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सिंपली नहीं, ये नाउन या सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं. इज द बेस्ट पॉलिसी. हाँ, पॉलिसी. सो इन सच ए मैनर वी कैन सी. सो सिंपैथी, किसी पर अगर आप दया दिखा रहे हैं. पोवर्टी, इफ कंडीशन, नॉट ओनली इट इज़ स्टेट ऑफ माइंड. ये जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं ये ऊपर क्या चीज़ें बताती हैं बताइए? स्टेट ऑफ माइंड, वो भी एब्स्ट्रैक्ट और नाउन है. सो स्टेट ऑफ आपका जो लिविंग है, जैसे पोवर्टी. सो पोवर्टी इज़ ए कर्स एंड रिचनेस इज़ बून. तो गरीबी अभिशाप है और अमीरी वरदान है. सो पोवर्टी हो गया. सो स्टेट ऑफ लिविंग, कि आप कैसे रह रहे हो, तो पोवर्टी आ जाएगा. पोवर्टी इज ए कर्स. तो ये नाउन की जगह आया, अभिशाप होता है. इसी तरीके से और क्या आ सकता है? रिचनेस आ सकता है. अदरवाइज और कुछ भी चीज़ हो सकती है. दैट इज स्टेट ऑफ लाइफ स्पैन. स्टेट ऑफ लाइफ स्पैन कैसे? चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. तो बचपन, चाइल्डहुड, ठीक है. एडल्टहुड, इसी तरीके से क्या हो सकता है? मैनहुड. दैट मीन्स अलग अलग जीवन की अवस्थाएं हैं. दैट इज जेरेंटल पर्सन, कोई बूढ़ा हो जाए तो जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से कहते हैं. सो इट इज़ ऑल किस तरीके से. एंड दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ अब देखो कि अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसमें आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन क्या है. दैट इज नाउ सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर. सर आप नाम लेके पूछिएगा. ओके, इट इज लाइक दिस. नाउ श्रेयान टेल न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट. तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? अभी कुछ ठीक हुआ? प्रॉपर नाउन. हाँ, क्या इसमें प्रॉपर मतलब इसमें वर्ड बोलना है ना वो. तो न्यू प्रॉपर नाउन होगा ग्रेट साइंटिस्ट. प्रॉपर नाउन आपने अच्छा बताया है. अनुराग बताओ इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? वही बताए, सब लोग मत बोलिए. अनुराग बोलो. न्यूटन. वेरी गुड. माही बताइए कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज. तो इसमें ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज. व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? अगेन हियर यहाँ पर भी न्यूटन ही होगा. नेक्स्ट देखो, जस्टिस इज सबल क्वालिटी. जस्टिस एक सबसे बेसिक गुण होता है. माही बताओ, इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ. जस्टिस इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ओके, कार्तिक टेल ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस. सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस. इसमें कॉमन नाउन क्या है? चीफ जस्टिस. जैसे चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, ये कॉमन नाउन है. ओके, नेक्स्ट इज यश. दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड. सर गोल्ड.
गोल्ड, यस. नाउ कॉमन नाउन बताना है आपको. एक मिनट, अमित आर यू देयर? अमित आप बताइए कि द गोल्ड ऑफ टेम्पल वॉज कैरीड ऑफ बाई इन्वेडर्स. तो इसमें आप ये मुझे बताइए कॉमन नाउन क्या है? टेम्पल भी हो सकता. हाँ बोलो. गोल्ड मटेरियल नाउन है. इन्वेडर्स जो है एक ग्रुप है, तो वो भी हो सकता है कॉमन नाउन. इन्वेडर यहाँ पर क्या है? इट टेम्पल, टेम्पल भी हो सकता है. टेम्पल इज ऑल्सो एक कॉमन है. एनी रिलीजियस प्लेस को टेम्पल कहते हैं. टेम्पल भी ठीक है. नाउ there are some sentences which are having some errors and you have to correct it. अच्छा, अब देखिए ओके. now just hold. Okay. Now there is some error in noun जिसे आपको बताना है. मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सर मैं बताऊं टीचर? हाँ बोलो. वहाँ पे एच आएगा. सो यहाँ पर मैथमेटिक्स हो जाएगा. मैथमेटिक्स is an interesting subject. Now he sold 5 dozens apple. उसने 5 दर्जन सेब बेच डाले. सो डजन नहीं होगा, किलो होगा, किलोग्राम. यस इट. डजन होगा, डजन नहीं होगा. हाँ कुछ भी बोल रहे थे, मैं बताऊं? हाँ बोलो. सर डजन में ऐप नहीं आएगा. यस, he sold 5 dozen apples. so it is correct. dozens नहीं होगा. now लेकिन कई कई जगह कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिसमें कि एस आ जाता है. जैसे कि 8 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस. 8 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. नाउ इसमें बताइए सही क्या है? अनीशा, क्या ठीक हो सकता है? 8 miles होगा. हाँ, 8 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये करेक्ट है. नाउ दिस इज. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यह लड़कियों का स्कूल है, या हॉस्टल है.
हॉस्टल है, तो अब ये गर्ल्स भी आएगा और अपॉस्ट्रॉफी भी आएगा पॉजेसिव वाला, तो इसे किस तरीके से लिखा जाए? दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, क्या ये करेक्ट है? एक तो ये है, हमने आपको बताया, और दूसरा है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, और दिस इज अब देखो तीसरा भी है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, तो सबसे नीचे वाले का मतलब भी बताओ। अगर ये तो ठीक है कि ये सही है, ये गलत है, ये इसका भी मतलब बताइए। मतलब इसका मतलब तो बताओ। इसका मतलब है सर ये किसी एक लड़की का हॉस्टल है। हाँ, यह एक, इसमें सिर्फ एक लड़की रहती है, यह एक लड़की का हॉस्टल। ओके, नाउ देयर इज मैनी अ सोल्जर्स हैव रन अवे, तो यहां बताया गया है मैनी अ सोल्जर्स हैव रन अवे का ये ईशान बताइए। सर अरबी की जगह रहना है। अच्छी बात कही है, ये नाउन की गलतियां हैं। हिमांशु, आर यू देयर? सर ए नहीं आएगा ये भी अच्छा है। नाउ और एक भी साथ में नहीं आते। ओके, नाउ प्रांजल, मैनी अ सोल्जर्स हैव रन अवे। सर ए तो नहीं आएगा। तो ये ठीक इन्होंने कहा है कि मैनी अ सोल्जर। कैसे इन्होंने बताया? क्योंकि जब एक, बहुत सारे एक सोल्जर, बिकॉज इंडिविजुअल सोल्जर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मैनी अ सोल्जर यानी उनमें से कई एक भाग गए, तो जब ए लगा है तो सोल्जर्स नहीं आएगा, दैट मीन्स मैनी अ सोल्जर होगा, हैव रन अवे। सो यहाँ पर और फिर हैज़ आ जाएगा, जब सोल्जर की बात आ गई तो हैज़ रन अवे। सो इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से एवरी वन ऑफ द बॉय, इट इज़, ये एक्सक्लूसिव है, यानी इसमें एक एक सोल्जर की बात की गई है, सारे नहीं भागे, कुछ कुछ भागे, तो आ लगा है तो इस वजह से सोल्जर आ गया। सो इस तरीके का सेंटेंस क्या हो रहा है, उसमें सबको इंक्लूड नहीं करा। दो तरीके के होते हैं, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव में चूंकि एक एक के बारे में ये बोल रहा है तो इसलिए यहाँ एस हट गया है, एक्सक्लूसिव। सर यहाँ पे मैनी आएगा क्या? हाँ, बहुत सारे एक सोल्जर, इफ एवरी सोल्जर इज इम्पॉर्टेंट देन कहा जाता है मैनी अ सोल्जर। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर यूज्ड। ये तो जो हम लोग की बोलचाल की वर्नाकुलर लैंग्वेज उसमें यूज़ किए जाते हैं। सो इस तरीके से मैनी अ सोल्जर, दैट मीन्स बहुत सारे एक सोल्जर। इट इज़ नॉट ए हर्ड ऑफ कैटल, ये नहीं कह सकते कि वो भाग गई सारी बकरियां, बिकॉज एवरी सोल्जर इज इम्पॉर्टेंट, सो वी आर स्टेटिंग इट लाइक मैनी अ सोल्जर, बिकॉज ईच सोल्जर इज इम्पॉर्टेंट टू विन द जो भी है वार। सो इस तरीके से एवरी वन ऑफ द बॉय वाज रूड, इसका बताइए। एवरी वन ऑफ द बॉय वाज रूड, तो प्रत्येक लड़का रूड था, तो यहाँ पर निर्दयी था, तो यहाँ क्या हो सकता है? ये किस तरीके का है एवरी वन ऑफ द? क्या इसमें सारे लड़के आ गए? क्या ये इंक्लूसिव है? तो इसमें क्या आएगा बताइए? सर वर्ब आ सकता है। सर वर्ब आएगा। क्या आ जाएगा? एवरी वन ऑफ द बॉय, सिर्फ नाउन में अमेंड करना है आपको, नाउन के अलावा कहीं नहीं देखो। सो एवरी वन ऑफ द बॉयज, ओके, एवरी वन ऑफ द बॉयज, सभी लड़कों में से प्रत्येक रूट था। लड़कों में देखो, जब बोलते समय, सीधी सी बात, आप बोलते समय क्या बोलते हो कि लड़कों में से हर एक निर्दयी था, कि ये बोलते हो लड़का में से हर एक। जो हिंदी में बोलते वही इंग्लिश है, ठीक है।
तो बहुत सारे सैनिक कि बहुत सारे सैनिकों बोलोगे तो बहुत सारे कई एक सैनिक भाग गए, बोलते नहीं हो, कई एक रणबांकुरे मारे गए। क्यों ऐसा बोलते हो? कई रणबांकुरे क्यों नहीं बोलते हो? न्यूज़ में सुनते हो तो कई एक सिपाही मारे गए, बिकॉज इट इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग। तो कई एक सिपाहियों मारे गए बोलते हो क्या, कि कई एक सिपाही, बिकॉज एवरी सोल्जर इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई एवरी लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो कई एक रणबांकुरे मारे गए। अब उनमें यहाँ क्या बोलोगे कि लड़कों में से प्रत्येक निर्दयी था कि लड़का में से प्रत्येक? बताइए। और वास किसको पर्टेन कर रहा है? एवरीवन को। तो वास तो ठीक है, वास को वार मत करो। लड़कों में से एक प्रत्येक निर्दयी था कि थे? अब बोलते समय भी बोलो, लड़कों में से प्रत्येक निर्दयी थे कि निर्दयी था? नहीं, थे नहीं होगा, लड़कों में से हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक निर्दयी था। या ये कह सकते हो कि जो हमारे ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण किया उसमें से हर एक आक्रमणकारी क्रूर था कि क्रूर थे? तो क्रूर था। सो इस तरीके से एवरी वन ऑफ द बॉयज, आक्रमणकारियों में से प्रत्येक, एवरी वन ऑफ द बॉयज वाज, चूंकि एवरी वन के लिए वाज आया है, वाज रूट। सो इस तरीके से दिस वाज ओके। नाउ अब देखिए ये, हाँ बोलिए। आवाज़ कम आ रही है, ओके हम देख लेते हैं। ओके, इसको हम चेक करते हैं आवाज़ को। अब तो सही आ रही है सर। ओके, ठीक हो जाएगी, करने दीजिए। नहीं वो हम ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। ओके, नाउ सो वी हैव सीन दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन में ये बात हमने देख ली थी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर टू बी known in case of noun, like gender। जेंडर का क्या मतलब होता है? हाँ, दैट इज, इट इज विच इज टेलिंग कि मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और कंबाइन, दैट इज कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। सो एनीथिंग विच इज टेलिंग अबाउट जेंडर, कि वो किस जेंडर का है। सो उस चीज़ के लिए किसी स्पीसीज के अंदर जेंडर हो सकता है। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर जो कि हमको ये बताते हैं। इट इज़ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का क्या मतलब होता है? मेल या पुरुष। और फेमिनिन का क्या होता है? हाँ, स्त्री, उसमें स्त्री के गुण हैं। इसी तरीके से बोवाइन का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलते हो ना बोलचाल की भाषा में, तो वो गाय जैसा है। फीलाइन का मतलब क्या होता है? गाय जैसा है का मतलब क्या भाई होता है? बहुत सीधा साधा। तो इसलिए फीलाइन का मतलब क्या होता है? वो लड़की बिल्ली जैसी है, चालाक, बिल्ली जैसी। इसी तरीके से वल्पाइन का मतलब क्या होता है? ये बोलचाल की भाषा में आप लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हो कि नहीं, कि वो लोमड़ी जैसी है, ठीक है। इसी तरीके से अरसाइन का मतलब क्या होता है? उसके बाद वो भालू जैसा है, खाता पीता सोता रहता है। तो ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। हाउ एवर दीज आर द जेंडर्स। तो इसलिए नाउ अब देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स। वन इज मैस्कुलिन, अदर इज, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है हस्बैंड, ब्रदर, किंग, बॉय, टाइगर, ये सारे हैं।
अभी आवाज़ ठीक आ रही है? किंग, हाँ आ रही है। किंग, बॉय, टाइगर। टाइगर की फेमिनिन क्या होगी? टाइग्रेस। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन थोड़ी होता है, ऑक्स का काऊ होता है। ठीक है, प्लूरल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। जब प्लूरल पूछें तो प्लूरल बताओ। नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर। सो फेमिनिन जेंडर में क्या होगा? वाइफ। फेमिनिन जेंडर देखो, सो इट इज, कस्टम मतलब क्या होता है बोलो। सर? कस्टम कस्टम एक तरीके का कस्टम ड्यूटी लगती है, तो सीमा कर, सीमा शुल्क, कस्टम। और रिवाज भी होता है कि इट इज़ माई कस्टम, दैट इज़ सच काइंड ऑफ रिचुअल्स वी आर डूइंग। तो रीति रिवाज कुछ आपके यहाँ होता है तो कहते हो ये हमारे यहाँ कस्टम है, हमारे इस तरीके से शादी में ऐसे किया जाता है। सो कस्टम ड्यूटी भी होती है, जो सीमा शुल्क लगता है। बाहर से चीज़ें जो आती हैं, जैसे ये चीज़ हमने बाहर से मंगाई है तो ये 2000 की थी, लेकिन जब इसे मंगाया तो मंगाने में 2000 कस्टम ड्यूटी लग गई है, मुझे 4000 की पड़ी। तो बाहर से जब हमने इसको जर्मनी से मंगाया तो इसकी कीमत सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा इसलिए लग गई क्योंकि जर्मनी से आने में सीमा शुल्क लग गया। वाई इट इज़ डन सो? बिकॉज सो दैट आवर इंडियन प्रोड्यूसर्स आर प्रमोटेड। नहीं तो अगर इंटरनेशनल कंपटीशन हो जाएगा तो हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अगर मान लो किसी चीज़ को बनाते हैं और दूसरे उससे सस्ते बना दें, चाइना वाले, तो उनका पूरा मार्केट हमारे यहाँ छा जाएगा। सो ऐसे केस में सरकार जो है लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करने के लिए और बाहर वालों को डिमोट करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाती है, सो दैट देयर प्राइजेज मे बी सो हाई दैट एनी परचेजर में थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग फॉर इट। तो 2 बार सोचना पड़े कि ये इतनी महंगी है, हम इसे ना लें और अपना इंडियन चीज़ ले लें। वही चीज़ यहाँ इंडिया में 300 की मिल रही है, लेकिन बाहर वही 4000 की पड़ी, लेकिन उनकी क्वालिटी जो 300 की है, सो इट इज़ वर्दी टू थ्रो। वो इतनी अच्छी है नहीं। सर आपने हाँ बोलो। सर आपने जर्मनी है ये कुछ भी जो भी हमारे कई तरीके के सिमुलेटर्स हैं या किसी चीज़ हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई कई तरीके की असेंबली होती है। जैसे ब्रेन का हमने एक ले लिया मॉडल, तो उसमें कई तरीके की 50 असेंबल्ड पार्ट हैं। जो इंडिया से लोगे तो उसमें 2-3 असेंबली हैं। तो बच्चों को सिखाने के लिए फिर वो मॉडल ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उसके पार्ट नहीं देख पाएंगे। इंडिया में भी बनता है बट वो एक सिंगल पार्ट में बनेगा, उसका मटेरियल ठीक नहीं रहेगा। सो सच थिंग्स आर देयर। हाँ, सर जेंडर में कस्टम क्या होता है? जेंडर में अभी कस्टम हम देख लेते हैं, अभी नेट में देखते हैं। सो फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर दैट इज वाइफ, सिस्टर एंड क्वीन, गर्ल, टाइग्रेस, जैसे कि अभी इस रीजन ने बताया था, किसने बताया था? और ऑक्स का काऊ बताया था। और कस्टम आप पूछ रहे हो, तो कस्टम मीनिंग, This is the definition of me. कस्टम मीनिंग, This is the definition of so it is a kind of behavior which is some person doing regularly। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है कस्टम का मतलब। कस्टम हमें अभी देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली दिख नहीं रहा है नेट में भी। तो आपको और जानकारी में है तो बता दो, तो ठीक है। कस्टम छोड़ दीजिए, कस्टम नहीं दिख रहा है तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा अभी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर देखिए, तो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 3 लोग थे। एक था डॉक्टर, एक लॉयर और एक उसमें मिल्कमैन था। और चौथा आदमी किसी स्टेशन पर जाता है। हाँ, 4th पर्सन। कस्टम जेंडर का मतलब कि हम अपना जेंडर खुद से डिसाइड करें सर। ओके कौन सा जेंडर बनना चाहते हैं वो खुद
ओके ओके, दैट इज कस्टमाइज, किसी भी चीज़ को ओके, समझ में आ गया। आप कह रहे हो कि किसी चीज़ को कस्टमाइज किया जा सकता है एज पर योर विम एंड फैंसी, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। नाउ अब सुनिए, कॉमन जेंडर। तो किसी ट्रेन के किसी डिब्बे में 3 लोग थे, उसमें डॉक्टर था, लॉयर था और मिल्कमैन था। चौथा आदमी चढ़ता है और उसमें से कोई उसको मार देता है, तभी पुलिस आ जाती है। तो उसका ये लास्ट वर्ड होता है, ही हैज़ ट्राइड मी टू किल। और पुलिस उस बेचारे मिल्कमैन को गिरफ्तार कर लेती है और लॉयर और डॉक्टर को जाने देती है। वो ऐसा क्यों करती है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। किसी डिब्बे में, ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में डॉक्टर, लॉयर एंड मिल्कमैन थे। एक चौथा आदमी चढ़ता है और उनमें से कोई एक उसको मारने की कोशिश करता है, तभी पुलिस उस डिब्बे में चढ़ती है एंड टेक्स द स्टेटमेंट। तो चौथा आदमी बोलता है, ही हैज़ ट्राइड मी टू किल। तो पुलिस मिल्कमैन को तो गिरफ्तार कर लेती है, बाकी दोनों को बिना पूछताछ के जाने देती है। पुलिस ऐसा क्यों करती है? सर ऐसे मिल्कमैन तो मेल होता है ना। हाँ, और ये जो डॉक्टर और लॉयर हैं वो कॉमन जेंडर है, वो दोनों फीमेल थे, तो इसलिए वो उनको जाने देती है। और उसने बोला था, ही हैज़ ट्राइड मी, सो ओनली ओके। सो जैसा भी हो सकता है, कस्टम का ऐसा नाम नहीं दिया जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कस्टम जेंडर करके नहीं दिया है, तो कॉमन जेंडर तो दिया है। तो कॉमन जेंडर में जैसे फ्रेंड, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी, कज़िन, तो वो हमारा कज़न है, इट इज़ यूज्ड फॉर एनीथिंग। ओके, नाउ ओके, लेट मी चेक इट। अगर आप ऐसा कह रहे हैं ट्रांसजेंडर को कस्टम कहते हैं, लेट मी चेक इट, तभी हम बता पाएंगे। हाँ तो सर हाँ, अपना जेंडर चेंज करना या फिर ट्रांसजेंडर भी आता है उसमें, सब आते हैं। कोई जेंडर चेंज नहीं होता। ये है, तो ये फ्रेंड हो गया, कज़न हो गया, नेबर हो गया। इसमें क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सो ये सभी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर, दैट इज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फॉर इनएनिमेट, निर्जीव वस्तुएं, इनएनिमेट, दैट इज लाइफलेस थिंग, जिनमें कोई लाइफ ना हो, के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे बुक, तो बुक का कोई जेंडर नहीं होता है, बुक, पेन, ओके, स्टोन। क्या बुक है, बुक फीमेल है कि मेल है? टेबल, अगर मेल है तो उसका फीमेल बनाया जा सकता है, मैस्कुलिन का फेमिनिन, बाकी ना कॉमन का कुछ बदला जा सकता है ना इसका बदला जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैस्कुलिन और फेमिनिन बताइए कुछ का, और फेमिनिन। नाउ बैचलर, बैचलर का क्या होगा? नाउ बैचलर राइट। ये ठीक है, तो कुंवारा और कुंवारी, मेड, सो दिस इज कुंवारा। ओके, नाउ खाना बनाना था उसको भी कहते हैं मेड। हाँ ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ए मेड। तो हाँ मेड है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नौकरानी भी कहा जा सकता है। ब्राइड ग्रूम का बताइए। ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, तो इस बताइए क्या बनाए, बोलेंगे? सब ब्राइड ही रहता है। ये ठीक है, ब्राइड। हाँ, नहीं ठीक बता रहे हैं आप, क्योंकि ये हम लोग के लैंग्वेज में है ना भाई। पार्टी में हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग ब्राइड बोलते हैं, तो बुल का क्या होगा? सांड, सांड का क्या होगा? सर आपका क्या दिखा है? बुल, सर काउ। काऊ। और ऑक्स का भी काऊ होता है। ओके, बुलक का क्या होगा?
बुलक का मतलब क्या होता है? बैल। उसी के नाम पे बुलक कार्ट है, तो क्या होगा? फिर इसका भी काऊ होगा शायद। इसका भी काऊ होगा। ऑक्स का क्या होगा? फिर ऑक्स का भी काऊ होता है। काऊ हो जाएगा क्योंकि ये सभी बैल हैं। नाउ कॉक, मुर्गा। कॉक का शायद पिकॉक होता है। नहीं, कॉक कॉक नहीं। कॉक, कॉक का हैन हो जाएगा। डॉग, कुत्ते का क्या होगा? बिच, कुतिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रोन। ड्रोन का क्या होगा? दैट इज नर मधुमक्खी। ड्रोनी। बी होगा। तो बी होगा। बी सर बी। ठीक है, ड्रोन का बी हो जाएगा। ओके। नाउ गैंडर का क्या होगा? हंस, हंसिनी। जो हंस होता है उसको जो हंसिनी है दैट इज गूज, और ये हंसिनी है। ठीक है। ओके। नाउ जेंटलमैन। तो जेंटल वुमेन। ये ठीक बता रहे हैं, जेंटलमैन, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इनका कहना बहुत अच्छा है। तो लेडी। सो भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष। ओके। नाउ हॉर्स। हॉर्स का क्या होगा? घोड़ा। हाँ, ये अच्छा बताया, दैट इज मेयर, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज में जानते हैं तो इस वजह से ये बता पाए। लैड, लड़का। ये ठीक है। हाँ, इट इज करेक्ट, इट इज लेस। नाउ ओके, लॉर्ड, स्वामी। किसी घर का स्वामी है लैंड लॉर्ड, तो स्वामी। हाँ, इट इज लेडी, लैंड लेडी। देखिए ये क्या है ना, देसी है लोग हैं। अब जैसे बिहार में कोस कोस पर भाषा बदले, चार कोस पर पानी, तो आपके यहाँ भी लोकल कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वहाँ पर उसे लॉर्डेस बोला जाता होगा, बट उसको कैन नॉट बी डिनाइड। हाउ एवर देर इज ए इंग्लिश इज सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। लॉर्डेस ठीक है, आप क्या बोला जाता होगा, बट इसमें हमें फिर भी देखना पड़ेगा ना ग्रामर के हिसाब से, नहीं तो ग्रामर बदलती जाएगी। नाउ मॉन्क। मॉन्क का मतलब भिक्षु होता है, जैसे बौद्ध भिक्षु, तो उसका क्या होगा? जिसने घर त्याग दिया हो उसे मॉन्क कहते हैं। शादी न की हो उसका क्या होगा? ये ठीक बताया, नन। तो जो शादी नहीं करते हैं वैसे लोग वो करते हैं, तो सेवा करते हैं धर्म की। मिस्टर, मिसेज हो जाएगा। नाउ मास्टर, बताइए। मिस्ट्रेस। ओके। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। तो चाचा भतीजा होते हैं, तो नेफ्यू का क्या होगा? नीस। ओके। नाउ प्रिंस का क्या होगा? प्रिंसेस। सर, सर का क्या होगा? हाँ, मैडम। ओके। नाउ अंकल, आंट। नाउ वाइस राय। वाइस राय कहीं का, जैसे इंडिया का वाइस राय है जो कंपनी का था और जिसने कॉलोनियल यहाँ पर बनाया, तो उसको क्या कहते हैं? बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वाइस राय बनाए थे, प्रतिनिधि। तो वाइस राय का क्या होगा? सो अच्छा बताया आपने। तो
वाइसराय का मतलब क्या था? वायसराय और वायसराइन का मतलब है वो उस प्रतिनिधि है, बट ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाएगा कि वायसराइन है। जैसे प्रिंसेस है, राजकुमारी, वायसराय है, वायसराय। सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ कमांडर, फीमेल कमांडर, और कोई बात नहीं है। इसी तरीके से सुल्तान, मुस्लिम में क्या होता है, मुगल में सुल्तान होते हैं, तो उसमें क्या होगा, सुल्ताना। सुल्ताना। ऐसे ही जादूगर होते हैं, विजार्ड, तो सर विचर, सर हाँ विच। हाँ, जादूगर तो जादूगरनी, दैट इज विच। ओके। जो जार हैं, जैसे रशिया में क्या होते थे, वहाँ जार लोग राजा करते थे, निरंकुश। वो जो भी कहते थे वही सबको मानना पड़ता था। तो जार का क्या होगा, सर जारीना। जारीना। सो दैट इज जारीना। सर जार की स्पेलिंग गलत है। TSAR भी होता है, TSAR भी लिखा है, कई बुक में अलग अलग है। तो फिर हिस्ट्री में तो यही लिखा है, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा नवाब का क्या होगा, ऑथर का क्या होगा, नवाब। जैसे अवध के नवाब, तो शहजादी। दैट इज काउंटेस। ऑथर का क्या होगा, लेखक का, लेखिका। यस इट इज करेक्ट, दैट इज ऑथरेस, लेकिन ओ रहेगा, ऑथरेस। प्रीस्ट का क्या होगा, पुजारी। सर प्रीस्टेस होगा सर। ये करेक्ट बता रहे हैं, दैट इज प्रीस्टेस, ठीक है। नाउ होस्ट, अगर आप किसी को बुला रहे हो अपने घर में, तो आप होस्ट हैं, और आपके घर में जो आएगा वो गेस्ट होगा, तो आप मेजबान हैं, मेज लगा के बैठे हैं, तो एयर होस्टेस। तो होस्टेस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एयर का क्या होगा, किसी का उत्तराधिकारी। तो अगर मान लीजिए उसका लड़का है, प्रिंस है, तो उसका वो एयर है, उत्तराधिकारी, बाद में उसी को सिंहासन मिलेगा, सर हेयरस होगा। दैट इज एयरस। एंड जीव, तो जीव क्या होते हैं, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, तो दे ओनली प्रे फॉर नेचर, वो नेचर की पूजा करते हैं, पर उनके लिए कोई भगवान नहीं होता, तो उन्होंने ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। जीव का क्या होगा, सर यूएस। हाँ, यहूदी इसको बोलते हैं, तो इस ज्यूएस। और इनके जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं, यहूदी के पूजा स्थल को, सिनागॉग, ठीक है। लॉयन, सर लाइनस। सर लाइनस। इट इज लाइनस। मैनेजर, सो प्रबंधक का क्या होगा, मैनेजर। मैनेजरेस। ओके। नाउ पोएट, पोएट कवि, हाँ, पोएटेस। ओके। नाउ गॉड, सर गॉडेस। हाँ, दैट इज गॉडेस। तो कहीं कहीं हमें देखना है, स्पेलिंग में भी एड्रेस करना है कि कहाँ स्पेलिंग में अमेंडमेंट हो रहा है। एक्टर, एक्ट्रेस। एडिटर, एडिटर का मतलब क्या होता है, सर जो किसी चीज को एडिट करता है। हाँ, संपादक, किसी न्यूज़पेपर को या मैगजीन को, तो संपादक। उसका क्या होगा, एडिट्रेस। सो एडिट्रेस हो जाएगा। नाउ इसके अलावा इंस्पेक्टर,
अगर इंस्पेक्टर है निरीक्षक तो उसका क्या होगा? हाँ, इंस्पेक्ट्रेस होगा। सो इंस्पेक्ट्रेस। मॉनिटर, मॉनिटर का क्या हो सकता है? मॉनिटर, मॉनिट्रेस। सो नीग्रो, नीग्रो कौन होते हैं? जो अफ्रीका के लोग होते हैं, हबशी। ब्लैक पीपल, हाँ, रेड इंडियंस, जिनको अमेरिका में रेड इंडियंस भी कहा जाता है, अफ्रीकन्स जो मूल निवासी हैं, तो उसका क्या होगा? नीग्रेस, नीग्रेस। ओके, नाउ टाइगर, टाइग्रेस। वेटर, वेट्रेस। वेटर का मतलब है कोई जो सेवा करता हो, तो सेवक, तो वेट्रेस। सो देयर आर एम्पेरर, एम्पेरर, सो एम्प्रेस। नवाब, दैट इज ड्यूक। देखो, एम्पेरर और प्रिंस में क्या अंतर है? ये सम्राट होता है, ये कई बहुत बड़े एरिया का होगा, और जबकि प्रिंस या किंग किसी छोटी जगह का भी हो सकता है। एम्परर बहुत बड़ी जगह को कहेंगे। सो मुगल एम्परर है बिकॉज इन ए लार्ज लैंड ही वाज रेनिंग, जो भी वहाँ का मुगल एम्परर था, दैट पर्सन, सो एम्परर बोला जाएगा। नाउ ड्यूक का क्या होगा? डच, डचेस, नवाबन। ओके, नाउ गवर्नर, दैट इज राज्यपाल का क्या होगा? किसी भी राज्य का, स्टेट का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। अगर लेडी हो तो क्या बोलेंगे? गवर्नेस। ओके, नाउ सो ये हमने देखे कि कुछ मेल एंड फीमेल जो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, जिसमें ये बात हमने देखी। बकरे का बताइए, ही गोट, शी गोट। नाउ पीकॉक, पी हैन, मोर, मोरनी। ओके, पी कॉक, इन सभी के बीच में डैश रहेगा, और ही गोट में भी रहेगा, और शी गोट में भी रहेगा। नाउ सन इन लॉ, इट इज डॉटर इन लॉ। ओके, नाउ इसी तरीके से मिल्कमैन का मिल्क वूमेन हो जाएगा। ओके, नाउ जैक एस, गधे का क्या होगा? जैक एस, गधा। बताइए, जैनी एस, दैट इज गधी। ओके, बाकी ठीक है। सो आई हैव कवर्ड ऑल काइंड्स ऑफ जेंडर्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।